صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رمضان کا پہلا عشرہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا عشرہ فرمایا۔ قرآن کریم نے ایک ضابطہ اور ایک اصول بیان کیا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے مستحق وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں نیکیاں ہوں۔ ویسے تو اللہ کی رحمت عام ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو خصوصی رحمت ہے، خاص طور پر رمضان کے اس مہینے کے پہلے عشرے کی رحمتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دن کا روزہ رکھتے ہیں، رات کی تراویح پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اعمال والی زندگی گزارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ سب سے بڑا تو فرمایا کہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اس مہینے میں نفل کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا۔ اس مہینے کی وجہ سے عمل میں وہ طاقت آ جاتی ہے، انسان کا کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ پڑے گا نفل اور ثواب اس کو ملے گا فرض کا۔ اور یہ تو کل قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے گا نا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن حساب ہوگا عبادات میں سے نماز۔ اگر کسی کی نماز کچھ کم ہوئی تو اللہ اس وقت فرمائیں گے دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل ہو۔ نفل ہوئے تو وہ نفل اللہ فرضوں کے درجے میں قبول فرما دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے پاس فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اس میں تو ناغے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ جیسے کل رات کے تراویح کے بعد بات ہو رہی تھی کہ سب سے جو مشکل جگہ ہے وہ میدان جنگ ہے۔ دشمن سامنے، صفے سامنے، ادھر بھی تیاری ادھر بھی تیاری۔ اس میدان جنگ میں مجاہد بہت بڑا کام کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، لیکن اس جہاد کے موقع پر صف میں کھڑے ہو کر دشمن سامنے ہیں پھر بھی نماز معاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والے کے لیے جو وعیدات بیان فرمائی، جو سزائیں بیان فرمائی، وہ تو مختلف احادیث میں موجود ہے۔ تو فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نفل کا درجہ فرض کے بدلے میں قبول فرماتا۔ تو عام دنوں میں بھی
अपने पास, बंदे के पास कोई नफलों का जखीरा होना चाहिए, कुछ ना कुछ नफली इबादत के बंदे की आदत हो। और ये एक उसूली बात है कि जो बंदा नफल पढ़ेगा, नफल की वजह से उस बंदे के सुन्नतें महफूज होंगी। हर नमाज के साथ अल्लाह ने सुन्नत को जोड़ा है, जहां फर्ज है वहां सुन्नत है, फिर नफल है। जो बंदा नवाफिल का एहतमाम करेगा उसके सुन्नतें महफूज होंगी, और जो सुन्नतों का एहतमाम करेगा उस बंदे के फराइज महफूज होंगे। शैतान बड़ा चालाक है कि कभी भी मुसलमान को ये नहीं कहेगा तू नमाज न पढ़, टाल मटोल करेगा, इसको लाइन से हटाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले शैतान मुसलमान को छुड़ाएगा नवाफिल, कि नफल है पढ़ ले ना पढ़े। जब नफल छोड़ देगा फिर उससे छुड़ाएगा सुन्नतें, और सुन्नतें आजकल आम वबा बन चुकी है, आम बीमारी लग गई है उम्मत को, सुन्नत का एहतमाम ही कोई। अभी बच्चे बाहर से मैं उठा के लेके आए, फर्ज पढ़ के जाकर बाहर तिलावत करने बैठ गए। भाई तिलावत नफली इबादत है, सुन्नत इबादत है। नफल कभी भी सुन्नत का मुकाबला। जितने हम नौजवान बैठे हैं यहाँ, हम अपनी आदत बना लें कि इंशाअल्लाह जिस नमाज के साथ सुन्नत है उस सुन्नत का हम इहतिमाम करें। सुन्नत तो हर जिंदगी के हर शोबे में है, लेकिन जो इबादत की सुन्नतें हैं, नमाज नफल भी, नमाज सुन्नत भी, नमाज वाजिब भी, नमाज फर्ज भी। अब जो बंदा सुन्नत पढ़ेगा उसके फर्ज महफूज, और जो नफल छोड़ देगा उसके सुन्नतें गई, जो सुन्नतें छोड़ेगा उसके फराइज गए। कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अभी टाइम है, टाइम गुजर गया, कल से शुरू करूंगा, हफ्ते से शुरू करूंगा, चलते चलते अगर नमाज के बगैर मौत आ गई तो मामला बड़ा खतरनाक है। इसलिए आम जिंदगी में भी नवाफिल का एहतमाम हो, और खास तौर पर रमजान के इस महीने में नवाफिल का एहतमाम हो, क्योंकि नफल अल्लाह फर्ज के दर्जे में कबूल फरमाते हैं। और हुजूर ने फरमाया जो फर्ज पड़ेगा इस महीने में, एक फर्ज अल्लाह 70 फर्जों के बदले कबूल फरमाते। कौन सा ऐसा बाहर के मुआशरे में कोई फैक्ट्री, कोई इस तरह का काम हो कि बंदा करे एक और उसको मिले 70। दुकानदार है, कारोबारी है, वो 1 रुपए के साथ 1 रुपए कमा ले बड़ा खुश, 1 रुपए के साथ 25 पैसे कमा ले बड़ा खुश, 10% कमा ले बड़ा खुश। और यहां पर मेरे और आपके अल्लाह का अपने बंदों के साथ रहमत वाला मामला। अल्लाह फरमाते तुम पढ़ोगे एक, मैं बदला दूंगा तुम्हें 70। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के चंद खुसूसियात बयान फरमाई। ये खुसूसियात किसी और महीने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी महीने में है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के खुसूसियात बयान फरमा रहे हैं। पहला फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये हुआ शहर सब्र, ये सब्र का महीना। किसका महीना है? सब्र। और फिर उस सब्र का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नतीजा बयान फरमाया, वस्सब्रु सवाबुहुल जन्नह, के सब्र का बदला जन्नत है। सब्र का बदला कुरान करीम में रब ताला ने वबश्शिर साबिरीन भी फरमाया। कुरान करीम में रब करीम ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन भी फरमाया। खुशखबरी भी, अल्लाह की माइयत भी, और बहुत सारा अज्र सवाब भी। और यहाँ पर तो हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा सब्र वाली जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उस सब्र का बदला उसको जन्नत अता करेगा। माह रमजान को सब्र का महीना क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इसमें इंसान की रूटीन बदल जाती है। सोने उठने की रूटीन बदल गई। अब तो इतना मसला नहीं है, सर्दी के रोजे जो गर्मी के रोजे होते थे फिर पता चलता है। मुशक्कत भी है, तकलीफ भी है, बाज़ औक़ात परेशानी होती है। किसी किसी टाइम सर्दी गर्मी के रोजों में बाज़ औक़ात सहरी के टाइम आंख न खुली, अब पूरा दिन रोजा है, पेट खाली, मैदा खाली होने की वजह से बाज़ औक़ात इंसान को गुस्सा भी आ रहा होता है। इन सब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हल बतलाया, और वो हल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब्र का महीना। कौन सा महीना है? सब्र। सब्र नाम है अपने गुस्से को, अपनी तबीयत को कंट्रोल करना। सामने कोई खिलाफी तबीयत, खिलाफी मिजाज काम हो रहा है, तो दवा पर सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या कर गया? सब्र। और रोजे में तो है ही सब्र की मशक़। मैं कई दफा कह चुका हूं कि पानी सामने, बल्कि बंदा वुजू कर रहा है, पानी मुंह में ले गया, लेकिन अंदर सब्र है, पता है उसको पानी की तलब भी है, मौसम भी है, प्यास भी लगी है, लेकिन नहीं पी, सब्र कर रहा है। इसलिए सब्र का महीना। रमजान इंसान को जिंदगी का ढंग तरीका सिखाता है कि अगर जिंदगी गुजारनी है तो ऐसे जिंदगी गुजार जैसे तू रमजान में गुजारा करता है। अपनी तबीयत को नहीं देखता, अपनी पसंद नापसंद को नहीं देखता, अपनी मर्जी को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह का हुक्म देख रहा है। तबीयत के खिलाफ है, अल्लाह का हुक्म है, पूरा कर रहा है। मिजाज के खिलाफ है, अल्लाह का हुक्म है, पूरा कर रहा है। तलब है, चाहता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए सब्र कर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र का महीना है, सब्र का महीना है। इसमें तरावी में खड़े होना पड़ेगा, तकलीफ होगी, सब्र। सुबह से लेकर शाम तक खाली पेट रहना पड़ेगा, तकलीफ होगी, सब्र। सुबह से शाम तक प्यासा रहना पड़ेगा, तकलीफ होगी, सब्र। बंदा कोई और इतना मुश्किल, हमारे क्या मुश्किल जिंदगी, हमारे क्या मुश्किल रोजे, हमारे क्या मुश्किल नमाजें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की जिंदगियों को जरा देखिए। यही रोजा है। पिछली उम्मतों पर जो फर्ज था वो और तरह से था। यही नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली दफा मेराज की रात लेकर आए थे तो कितनी नमाजें? 50 नमाजें। सोचो जरा, रोजा शुरू में ये हुक्म था कि रात को जिस टाइम आंख लगी रोजा शुरू। अब गर्मी का मौसम, कामकाज के दिन, इतनी छोटी छोटी रातें, दिन भर रोजा, काम करे बंदा। शाम को एक साहबी आ गए, प्यास लगी हुई, घर वालों से कहा पानी, वो कहीं पानी लेने गए, वापसी आ गए तो साहबी सो चुके हैं। अब फिर रोजा शुरू। सुबह हुई, हुजूर की खिदमत पे पहुंचे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल का प्यासा, कल काम किया, आज फिर दिन का रोजा, आज फिर प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये तो मैं मुश्किल हो जाएगी। सहाबा किराम कुर्बान जाइए, ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद तो मुश्किलें बर्दाश्त की, खुद तकालीफें बर्दाश्त की, लेकिन उम्मत के लिए आसानियां ढूंढते। फिर अल्लाह का हुक्म आया, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, कि अब रात का रोजा नहीं होगा, रात
खाओ पियो सो, जब सुबह तुलुल फजर होगी उस वक्त से आपका रोजा होगा और शाम गुरूब होने तक आप करोगे। वो कभी 12 घंटे बनेगा, कभी 14 घंटे बनेगा, कभी 15 घंटे बनेगा, कभी 10 घंटे बनेगा। तो सब्र का महीना है। और फिर दूसरी खुसूसियत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक की बयान फरमाई, जिसके मुझे और आपको हम में से एक को जरूरत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुवा शहरुल मुवासात, हुवा शहरुल मुवासात, ये गमखारी का महीना है। गरीब गुरबा मसाकीन के साथ अच्छे बर्ताव करने का महीना है। अगर 10 चीजें अपनी इफ्तारी के लिए तैयार की हैं तो 2-4 गुरबा के लिए भी कम से कम उसमें होनी चाहिए। असल तो ये था कि उनके लिए भी अपने बराबर का कर लिया जाए, लेकिन वो न सही तो कुछ ना कुछ अपने इस महीने में अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार बहन भाई जितने भी ताल्लुक वाले, जहां जहां तक बंदे का जहन जा सकता है, सोच जा सकती है, अमली तौर पर बंदा वहां पहुंच सकता है, तो कुछ न कुछ इस माह मुबारक में ये चीज होनी चाहिए। ये तो हमारी बदबख्ती है, वगरना अगर अपने इलाके के जमींदार पूरा पूरा उशर अदा करें, जो मालदार है वो ज़कात अदा करे, जो कारोबारी है वो अपने कारोबार का 2.5% वाले ज़कात के उस ज़ाब्ते पर अमल करे, तो पूरे इलाके के अंदर कोई भी बंदा गरीब नहीं रहे। लेकिन जिसके पास है वो यही समझ रहा है कि मैं इसका मालिक हूं और मेरी कमाई है, मेरे अपने पास है। ये नहीं सोच रहा कि देने वाले जिसने मुझे दिया वो मुझे कह रहा है कि खर्च कर। और आमतौर पर रमजान के इस महीने में लोग ज़कात भी देते हैं, सदक़ात उसमें भी इजाफा होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है, आप इस महीने में आकर बहुत कसरत से सदका खैरात करते थे, बहुत कसरत से सहाबा किराम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुटाते थे। घर में जो चीज आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। जहां तक गमखारी की बात है, दिलजोई की बात है, तो किताबों में एक वाक्य लिखा है, जहां मशहूर वाक्य कई दफा हम सुन चुके हैं। मैदान जंग है, एक साहबी, जंग थोड़ा सा मौकूफ हुआ, एक साहबी पानी लेके अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलता है। भाई नहीं होगा, जख्मी होगा, आमतौर पर एक्सीडेंट अल्लाह माफ फरमाए हो जाए या कोई भी चोट चोट लगे, सबसे पहले लोग पानी पूछते ने, पानी पिला। पानी लेके निकले, भाई जख्मियों में नजर आ गया और भाई कह रहा है पानी पानी पानी, तो लड़के जख्मी हुए। अब वो कह रहे हैं मैं पानी जब उनके मुंह के करीब करने लगा तो साथ कहीं और से पानी की आवाज आई। वो भाई मुझे कहने लगा भाई मुझे बाद में पिला लेना, पहले मेरे दूसरे जख्मी भाई को पानी पिला दे। कैफियत तो बाद में पता चलता है कि किस कैफियत में गमखारी है, किस कैफियत में दिलजोई है और किस वक्त किस आलम में एक दूसरे के तकाजे और एक दूसरे के जरूरत को पूरा करने का जज्बा। यार मैं उसके पास गया, अभी पानी उसके मुंह के करीब करने लगा था, साथ से कहीं और से आवाज आ गई पानी। उसने कहा यार मुझे छोड़, दूसरा मेरा भाई जख्मी होगा उसको जरा पानी पिला के। कह रहा जब उसके पास पहुंचूंगा तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, शहीद हो गए। पिछले के पास वापस आया वो भी शहीद हो गए, जब अपने भाई के पास वापस आया तो वो भी शहीद हो गए। यानी पोजीशन ये है कि चंद दिन के मेहमान है लेकिन अपने पर दूसरे को तरजीह दी जा रही है। हमारे तो अपना होता है ना, मेरी जरूरियात पूरी हो जाए। यार जरूरियात तो अल्लाह सबकी पूरी फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिशात भी साथ साथ पूरी हो जाए। मैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ हूं, अपने ख्वाहिशात की तकमील करना चाहता हूं और मेरा साथ पड़ोस जो है उसके घर में जरूरत भी पूरी नहीं है।
इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर मैं फर्ज नमाज का एहतमाम कर रहा हूं लेकिन मैंने अपने बहन का, अपने भाई का हक मारा है, अपने बहन अपने भाई के हक पर डाका डाला है, किसी मजलूम किसी गरीब बंदे का मैंने हक दबाया हुआ है, तो फिर वो मेरी नमाजें, वो मेरे रोजे, वो मेरे सदके, वो मेरे खैरात, वो मुझे छुड़ा नहीं सकते। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे महीना हुजूर ने फरमाया गमखारी का महीना है, तो हमारे अंदर भी गमखारी के जज्बात हो। और आज का बेहतरीन तरीका यह है, अगर मैं किसी के हेल्प मदद करना चाहता हूं तो मैं नकद पैसों से करूं। उसने दवाई लेनी है, दवाई ले लेगा, उसको कपड़े की जरूरत है, कपड़ा ले लेगा, उसको खुराक की जरूरत है, वो अपनी खुराक ले लेगा, उसको खाने पीने की चीज की जरूरत है, वो अपने खाने पीने की चीजें ले लेगा। और ईसाले सवाब का बेहतरीन तरीका इस माह मुबारक में और इन दिनों में, बजाय ये कि इकट्ठे किया जाए, बहुत सारों को जमा किया जाए और इतना खर्चा किया जाए, वो आके खा के पी के फिर कहेंगे यार की सी, क्योंकि नाशुक्र जैसे पहले ही बजाय फंक्शन करने के मैं ऐसे तरीके से इस महीने में गरीब गुरबा का साथ दूं, गरीब गुरबा के इमदाद करूं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दाएं हाथ से खर्च करेगा और बाएं हाथ को पता। कोशिश करनी चाहिए। अगर खुद बंदा नहीं कर सकता तो जो बंदा करने वाला हो उस तक बंदा पैगाम पहुंचाए। जिनको जो जरूरतमंद है, मुझे और आपको, हम में से हर एक को पता होना चाहिए कि फला बंदा जरूरतमंद है, फला मोहताज है, फला के घर खाना नहीं है, उसके ये जरूरत है, उसकी ये जरूरत है। ये मेरी और आपकी, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। कोशिश करनी चाहिए। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने को, इसकी फजीलत को और इसके अगले अहकामात को बयान फरमाया। तो आज के दरस में मेरे और आपके जहन में इस माह मुबारक के बारे में दो बातें आनी चाहिए। नंबर एक, ये महीना सबर का महीना है। कौन सा महीना है? सबर का। तो करेंगे इंशाल्लाह सबर। छोटी छोटी गल पे, छोटी छोटी बात पे, ये लड़ाई वो लड़ाई, आमतौर पर आपने देखोगे रोजों में लड़ाइयां भी ज्यादा हो जाती। वजह क्या है? सबर नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर की तलकीन की। घर में हो, घर से बाहर हो, दुकान पे हो, दुकानदार हो या गाहक हो, रिश्तेदार हो या पराया पड़ोसी हो, हमने हर मौके पर सबर का दामन हाथ से। और दूसरा जो आज के दिन का सबक है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह गमखारी का महीना, मुवासात का महीना है, अच्छे बर्ताव का महीना है। तो मेरी और आपकी कोशिश हो तो इंशाल्लाह हमारा मुआशरा भी बेहतरीन मुआशरा बन जाएगा, हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अफ़ु अन्ना फ़इन्नका अफ़ुव्वुन करीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। करीम अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको नेक बना, हम सबके आपस में मोहब्बत पैदा फरमा, हर एक का ख्याल रखने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह सबर का महीना तो हमें साबिर रख कि अल्लाह वो आसाद का महीना हम दूसरों को खैरखाई करने वाले बन जाए। रब्बी करीम तेरे हबीब ने जितने के जितने इस माह मुबारक के फजील को बयान फरमाई, बरकतें बयान फरमाई, अल्लाह वो सब हम सबको हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। इतने परेशान हाल है, सबको परेशानियां दूर फरमा। जो जेलों में है अल्लाह उनके लिए आज़ादी और छुटकारे की कोई सूरत पैदा फरमा। रब्बी करीम तेरी ज़ात करीम ज़ात है, रहीम ज़ात है, अपने बंदों के साथ रहम वाला मामला फरमा, हम सब के साथ रहम वाला मामला फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन।